Pulkit Arora, All India Rank 3 in CA Final November 2018 New Syllabus Examination. I have done my IDT from Vishal Bhattar sir, and what I like the most about Vishal sir is that he focuses on clarifying each and every concept, and also gives us real life examples by which we are able to connect more with the subject. He simplifies everything which is given in the form of charts, so we just have to go home, look at those charts, and we'll be able to remember everything. He makes us repeat the section number again and again and again, so at the end of the course we were able to remember not only the sections of GST but also that of the customs. So I will definitely tell you that Vishal sir is best for IDT, and thank you Vishal sir for teaching IDT in such a great manner. Thank you. Start. Hello CA Final aspirants, my name is Mukta Gokhale and I secured an All India Rank 32 in CA Final in November 2018. I got 67 marks in Indirect Tax Laws and I did my classes from CA Vishal Bhattar from V-Smart Academy. I had already done my classes with him in IPCC, so there was no confusion from my end where I should join the classes from. GST is the most volatile and ever-changing subject, and sir made us so comfortable that we really did not have to worry about anything. His notes are updated and his questionnaire contains so many questions that you really don't have to refer any other book for the same. Now, one thing that I would really like to convey to all is that GST is the last paper of all the 8 papers, and we tend to be really lethargic and tired after giving 7 papers. But GST is the most scoring subject and you can really not afford to lose your calm that time. One thing I'd really highly recommend is the GST and the Custom Booster by CA Vishal sir, wherein the entire important concepts are subsumed in the booster, and it is very important for last year revision. I myself personally referred the same and it really helped me score 67 marks. I am eternally grateful to CA Vishal sir and the entire V-Smart team for their constant support and guidance, and to all you students I wish you all the best and your successful endeavours. हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ सी विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पुणे। कैसे हो आप? दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो छोटा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अबाउट बूस्टर रिवीजन क्लासेस। बहुत से स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस इंक्वायरी आ रही है ऑन बूस्टर रिवीजन एज वेल एज कुछ स्टूडेंट्स ने प्री ऑर्डर बुकिंग भी किया है फॉर बूस्टर रिवीजन वीडियो क्लासेस, एज वेल एज कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ ये क्लासेस बुक करना चाहते हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो बूस्टर रिवीजन जो है, सबसे पहले तो बूस्टर रिवीजन के बारे में मैं आपको बता दूं। इस बार मैंने फॉर मे 2019 अटेम्प्ट 3 कोर्सेज जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं। एक रेगुलर कोर्स, दूसरा फास्ट ट्रैक फुल कोर्स और थर्ड बूस्टर रिवीजन। तो रेगुलर कोर्स जो है मतलब जो हमारा ऑलरेडी बैच हो गया है, जो फर्स्ट टाइम में 2019 के लिए अपेयर्ड हो रहे हैं और जिन्होंने 6-7 महीने पहले क्लास लगाया उनके लिए रेगुलर कोर्स था। फास्ट ट्रैक फुल कोर्स बेटा, जिसमें हर सेक्शन का डिटेल एनालिसिस किया है, जो 35 सेशंस का है, जिसमें जीएसटी, कस्टम्स और एफटीपी ये भी कवर किया है। नाउ ये 35 सेशंस में फ्रीक्वेंट रिवीजन मैंने नहीं लिया, और जब भी कोई सेक्शंस की हिस्ट्री बताता हो बेटा तो वो हिस्ट्री मैंने नहीं कवर किया, बाकी मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन कवर किया है। तो आप मेरे इस पे फास्ट ट्रैक फुल कोर्स के फीडबैक स्टूडेंट्स के देख सकते हो ऑन माय पेज vsmartacademy.com/विशाल सर पे, जिसमें जिन्होंने फास्ट ट्रैक फुल कोर्स किया है उन्होंने भी अपने व्यू दिए हैं। ये स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट था जिन्होंने पुराने कोर्स में सिलेबस किया हो एक्साइज सर्विस टैक्स में, या फिर जिन्होंने 1-1.5 साल पहले एग्जाम दी हो जीएसटी में, और फिर जीएसटी का क्लास की गैप पड़ गया हो 1-1.5 साल, उनके लिए, या फिर वो स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है पर पूरा सिलेबस कवर करना है और अच्छे से कवर करना है, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक फुल कोर्स बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जिन्होंने सेल्फ स्टडी की हो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हो। फास्ट ट्रैक फुल कोर्स था, 35 सेशंस में पूरा इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट किया है। तो दोस्तों ये था फास्ट ट्रैक फुल कोर्स। अब आते हैं बूस्टर रिवीजन पे, जो मेनली हमें अभी डिस्कस करना है।
सर बूस्टर रिवीजन क्या है? बूस्टर रिवीजन जो है बेटा, यहाँ पे बूस्टर रिवीजन ये एक तरह का रिवीजन मॉड्यूल है और इसमें टोटल 16 सेशंस प्लस अमेंडमेंट्स ऐसे मिला के अप्रोक्सीमेटली 20 सेशंस में पूरा बूस्टर रिवीजन किया है। बूस्टर रिवीजन हाँ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है जिन्होंने एक बार जीएसटी पढ़ा है फॉर मई 2018 अटेम्प्ट या नवंबर 2018 अटेम्प्ट। ओके, उन्होंने जीएसटी पढ़ा है और उनको रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए टू ब्रश अप द कंसेप्ट बूस्टर रिवीजन बहुत हेल्पफुल है। नाउ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बूस्टर रिवीजन जो है जैसे आप अगर अभी पढ़ने बैठे हो और आपको आईडीटी फिर से लिंक लगाना है किस तरह से पढ़ना है, तो आपको एक तरह का टेम्प्ट कर देगा, आपको एक किक दे देगा पढ़ने के लिए और आप फिर से सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाओगे। ओके, तो बिल्कुल बेटा अब बूस्टर रिवीजन बहुत हेल्पफुल है। नाउ बेटा ओके, बहुत से स्टूडेंट्स के ऐसे फीडबैक से इवन इस बार जैसे वी स्मार्ट एकेडमी टोटल 22 AIR वी स्मार्ट एकेडमी में आया है जो ओके बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, दर्शन सर के स्टूडेंट्स हैं। ओके, और उनके भी फीडबैक जो है बूस्टर रिवीजन पे ओके बहुत अच्छा आया है। नाउ बेटा जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बूस्टर रिवीजन और क्वेश्चनर्स ओके मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बार अगर आप रेगुलर कोर्स पढ़ लेते हो तो उसके बाद बूस्टर रिवीजन और यहाँ पे क्वेश्चनर्स मोर देन इनफ मटेरियल है। इस इन एडिशन टू दैट आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके बेटा, नो डाउट ओके अप टू डेटेड मटेरियल प्रोवाइड करना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप अपना काम कीजिए, बस आप अपनी पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों आपका बूस्टर रिवीजन स्टार्ट करने के पहले जैसे आपने मेरे पेन ड्राइव क्लासेस खरीदे होंगे, तो बूस्टर रिवीजन ओके का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बूस्टर रिवीजन के बारे में आपको देना चाहूँगा। ओके सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि मैं जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ओके पूरा अपडेटेड मटेरियल्स है, आपको सब कुछ अपडेटेड प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि बूस्टर डिवीजन के नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो गए, क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा, किस तरह से आपको पढ़ना है। और एक बात मैं आपको कह दूँ, ये सिर्फ बूस्टर डिवीजन नहीं है, दिस बूस्टर डिवीजन कम अमेंडमेंट्स है। कम ऑन, ये बूस्टर डिवीजन कम अमेंडमेंट क्लासेस है। तो इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा बूस्टर डिवीजन, क्वेश्चनर्स और अमेंडमेंट्स, बस इतना ही। ओके, अगर आपने एक बार जीएसटी रेगुलर नोट से पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ओके ये जो रिवीजन मॉडल क्वेश्चनर्स और यहाँ पे अमेंडमेंट्स मोर देन इनफ है बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूस्टर रिवीजन की। तो बेटा बूस्टर रिवीजन में मैं सबसे पहले एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अमेंडमेंट्स होती है, ओके तो अमेंडमेंट्स जो होती है बेटा वो सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट्स होती हैं, उसके बाद में रूल्स में, नोटिफिकेशन से कुछ प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स होती है एंड नेक्स्ट सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशंस बेटा। क्लैरिफिकेशंस ओके, तो ये अमेंडमेंट का स्ट्रक्चर रहता है, ये अमेंडमेंट्स का स्ट्रक्चर रहता है। तो थोड़ा मैं आपको ये बता दूं बेटा, इस बार हम क्या करने ओके कैसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि अमेंडमेंट यहाँ पे बूस्टर रिवीजन के 16 सेशंस है और ये 16 सेशंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, प्लस 16 सेशंस बूस्टर रिवीजन के प्लस अमेंडमेंट्स, ऐसा अप्रोक्सीमेटली 20 सेशंस के आसपास आपके रहेंगे। तो स्पेशली आपके मई 2019 के रिलेटेड अमेंडमेंट्स क्या होने वाली है ये थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। एक एक्ट था सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018। नो सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में अराउंड यहाँ पे 30 to 40 अमेंडमेंट्स थी और मेजर अमेंडमेंट्स थी। पर
बहुत अच्छी बात ये कि सीजीएसटी अमेंडमेंट्स एक्ट सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 ये आपके एग्जाम को यानी मई 2019 एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं है। आई रिपीट, मई 2019 एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं है। तो बस आप जो है ये 30 to 40 अमेंडमेंट से बच गया। इसमें से सिर्फ 2 अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल है जो मैं कवर करूंगा। मतलब आउट ऑफ ओके अगर यहाँ पर देखा जाए कि जितनी टोटल अमेंडमेंट्स है उसमें से सिर्फ 2 अमेंडमेंट्स, और वो भी बहुत इजी अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए ओके अगर आपने कोई फैकल्टी में पुराना किसी का वीडियो देखा होगा और ये सुना होगा कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स है, तो अब ऐसा नहीं है। ओके बहुत सारी अमेंडमेंट्स आपके मई 2019 को अप्लीकेबल नहीं करवाई गई है। मेजर अमेंडमेंट्स आपके 2018 मई 2019 एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं करवाई गई है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके तो आप मेजर अमेंडमेंट से बच गए। उसके बाद में जो अमेंडमेंट्स होती है बेटा, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस। ओके तो अगर आपने नवंबर 2018 का अटेम्प्ट दिया होगा तो उसमें ऑलरेडी बहुत सी अमेंडमेंट्स आपने कर ली होगी। तो इसके बाद फॉर मई 2019 में कोई मेजर ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। आई रिपीट, कोई मेजर ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। ओके स्पेशली आई टॉक अबाउट जीएसटी। ओके कस्टम्स में एक थोड़ा अमेंडमेंट्स जो मैंने बूस्टर में कवर कर लिया वो बताऊंगा आपको, लेकिन जीएसटी में जहाँ तक हम बात करें, ओके स्पेशली मैं अभी जीएसटी की बात कर रहा हूँ बेटा। ओके तो मेजर कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। ओके अगर आपने नवंबर अटेम्प्ट तक की पूरी अमेंडमेंट्स कर ली होगी तो जैसे आपकी अमेंडमेंट्स के लिए कट ऑफ डेट जो होती है बेटा वो होती है 31 अक्टूबर 2018 तक के। ओके सभी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और रूल्स आपको अप्लीकेबल है। इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट का, कम ऑन ध्यान से सुनिएगा, इंस्टीट्यूट का ओके एक एक्सक्लूजन, इंस्टीट्यूट का जो एक्सक्लूजन है कि कुछ टॉपिक्स पर आपको नहीं पूछा जाएगा। ओके तो ये जो इंस्टीट्यूट का एक्सक्लूजन आया बेटा, कुछ टॉपिक्स पे आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें जो लास्ट टाइम ओके इंस्टीट्यूट ने कहा था, जस्ट मिनट बेटा, जो लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि आपको रिटर्न पे सिर्फ जीएसटीआर 1 पे पूछा जाएगा और बाकी जो है ओके बाकी कोई भी सेक्शंस जैसे 38, 39, 40, 41, 42, 43 तक के सेक्शंस को आपको नहीं पूछा जाएगा। तो जो लास्ट टाइम का एक्सक्लूजन था, सेम एक्सक्लूजन इस बार रखा गया है। आई रिपीट, जो लास्ट टाइम का एक्सक्लूजन था, सेम एक्सक्लूजन इस बार रखा गया है। हाँ बस लास्ट टाइम टीडीएस और टीसीएस जो अप्लीकेबल नहीं था, पर इस टाइम जो है ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट टीडीएस एज वेल एज एंड टीसीएस ओके ये दोनों भी आपको अप्लीकेबल करवा दिए गए हैं। तो एज ओके जैसे मैं इसमें कवर कर लूँगा बेटा टीडीएस और टीसीएस, जो अमेंडमेंट्स मेरे एडिशनल में आपको बताऊंगा उसमें टीडीएस और टीसीएस का डिस्कशन पूरा मैं कवर करूँगा। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में। चलो ये तो बात हुई बेटा जहाँ तक अमेंडमेंट्स की ओके अंडर जीएसटी। सेकेंड हम बात करेंगे कस्टम्स की। ओके व्हाट अबाउट कस्टम्स अमेंडमेंट, customs amendments। कस्टम्स अमेंडमेंट्स ओके तो जहां तक मैं ये कहूंगा बेटा, तो अब यहाँ पे कस्टम अमेंडमेंट्स में स्पेशली एसीडी एडिशनल कस्टम ड्यूटी एसीडी 37 और 39 इसमें ओके वेयर हाउस सेल पे यहाँ डिस्कशन आया है। तो वेयर हाउस सेल के अमेंडमेंट्स जो मैंने हमारे डिस्कशन में कवर कर ली है, प्लस अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेस एंड एसएचएसी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ये यहाँ पे ओके फरवरी में रिमूव करके सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो 10% ऑन बीसीडी है, 10% ऑन बीसीडी है वो ऐड किया है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑन बीसीडी ये डिस्कशन में ऐड किया गया है। तो बस ये 2 मेजर अमेंडमेंट्स है
ओके, वेयर हाउस सेल जो एक नया कंसेप्ट आया 3739 में, और एजुकेशन सेस एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ अमेंडमेंट, और एक अमेंडमेंट जो हुई है एडवांस रूलिंग कस्टम्स की नहीं आई है, एडवांस रूलिंग। तो इतनी मेजर अमेंडमेंट्स कस्टम में हुई हैं। इस इन एडिशन टू दैट कोई ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट्स कस्टम्स में नहीं है। ओके, कस्टम्स के लिए फाइनेंस एक्ट 2018 आपके एग्जाम को अप्लीकेबल है, तो उसमें इन एडिशन टू दैट कोई ऐसी मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है बेटा। ओके, तो दोस्तों हाँ, अब आते हैं कि हमारा कोर्स किस तरह से होगा। ओके, और इसको किस तरह से लिया जाएगा। जैसा ओके, हमारा कोर्स जो है ये रिवीजन होगा पूरा। ओके, रिवीजन में ओके यहाँ पे पूरा अपडेटेड अप टू डेट रिवीजन होगा बेटा, प्लस यहाँ पे रिवीजन में प्लस अमेंडमेंट्स आपकी होगी, प्लस आपकी अमेंडमेंट्स होगी। अब एक अच्छी बात आपके लिए बता दूं बेटा, अमेंडमेंट्स में मैं वो अमेंडमेंट्स ओके यहाँ ओके वो अमेंडमेंट्स जो आपको नवंबर एग्जाम को अप्लीकेबल थी, आई रिपीट, जो नवंबर 2018 एग्जाम को अप्लीकेबल थी, तो नवंबर 2018 एग्जाम और उसके बाद में मई 2019 एग्जाम। ओके, तो बेटा नवंबर 2018 एग्जाम जो है ओके यहाँ पे ओके, तो यहाँ अमेंडमेंट्स थी 30 अप्रैल 2018 तक की, और ये 31 अक्टूबर 2018 तक की अमेंडमेंट्स। तो जो अमेंडमेंट्स नवंबर 2018 एग्जाम अप टू 30 अप्रैल 2018 तक की अमेंडमेंट्स थी, वो भी मैं आपके रिवाइज करवाऊंगा। ओके, वो पूरी अच्छी तरह से रिवाइज करवाऊंगा। और एडिशनल अमेंडमेंट्स यानी ये पीरियड के बीच में ओके जो अमेंडमेंट्स आई है, ओके कोई ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं बेटा ये पीरियड में। ओके, स्पेशली फॉर सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस में मैंने पहले ही कह दिया आपको कि CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 आपको अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट्स जो है ओके इन बिटवीन नहीं आई हैं। ओके, तो बाय नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स ओके तो ये अमेंडमेंट्स भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पे इसको किस तरह से डिज़ाइन किया बेटा, तो 16 सेशंस जो है वो आपके रिवीजन के हो गए, प्लस ये अमेंडमेंट्स मिला के आपके 4 to 5 सेशंस, वैसे 4 ही सेशंस में कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, तो ऐसे 20 सेशंस जो है आपके ये अमेंडमेंट जिसमें दोनों अमेंडमेंट्स हो जाएगी। तो चलो ये अच्छी बात है कि आपकी दोनों अमेंडमेंट्स में हो जाएगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ बेटा, ये जो 16 सेशंस है जो नवंबर 2018, आई रिपीट नवंबर 2018 के जो रिवीजन लेक्चर्स है ओके ये रिवीजन लेक्चर्स जो है जो मैंने लास्ट बैच के लिए रिकॉर्ड किए थे, नवंबर के लिए रिकॉर्ड किए थे, वो आपको पहले 16 रिवीजन के सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए सेशंस वही है जो नवंबर के हैं, नवंबर के लिए रिकॉर्ड किए थे। तो ये सेशंस ओके जो रिकॉर्डिंग नवंबर 18 की होगी ओके नवंबर 18 की वो प्रोवाइड होगी, प्लस यहाँ पे ओके आपको अमेंडमेंट्स के जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स है, जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है बेटा, वो एडिशनल अमेंडमेंट्स के एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो है ओके इसमें यहाँ ओके अलग से 4 to 5 सेशंस दिए जाएंगे। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब बेटा ओके मैं आपको एक बात कह दूं, पहले मुझे ऐसा लगा था कि भाई CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 अगर अप्लाई हो जाए तो मुझे फ्रेश रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ओके फॉर May 2019 अटेम्प्ट। रीज़न बेटा कि फ्रेश रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे 30 to 40 चेंजेस जो CGST अमेंडमेंट्स एक्ट 2018 के थे ओके तो मेजर चेंजेस थे, तो उसके लिए मुझे पहले ऐसा लगा था कि आई हैव टू डू फ्रेश रिकॉर्डिंग। लेकिन ओके जैसे इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आया कि CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 आपके May 2019 एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं है ओके तो बेटा फिर तो बहुत अच्छा रहा कि मैं यहाँ पे इस तरह से कि नवंबर जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है ओके ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग पर जो एडिशनल अमेंडमेंट्स हुई है ओके जो इन बिटवीन क्योंकि इसमें 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स प्लस आगे की अमेंडमेंट्स, इस तरह से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया। तो आप जो ऑलरेडी कंप्लीटली अपडेटेड मटेरियल्स जो है अप टू नवंबर 2018 प्लस उसके साथ अमेंडमेंट्स, इस तरह से ये ओके मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया है बेटा। तो नाउ अब देखिएगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट आप किस तरह से पढ़ोगे। आप पहले अपने 16 सेशंस जो है
ओके 16 सेशंस जो है ओके रिवीजन के, ये आप कंप्लीट कर सकते हो रिवीजन के सेशंस। हाँ, जहां जहां इन बिटवीन मेजर मुझे ऐसा लगा कि इन बिटवीन अमेंडमेंट्स ऐड करनी चाहिए, वहां मैंने इन बिटवीन अमेंडमेंट्स ऐड कर दी है। हाँ, पर बेटा ये जो है इन बिटवीन जो अमेंडमेंट्स जो आपके लिंक में होनी चाहिए वो मैंने इन बिटवीन पैच ऐड किए है जो आपके लिए जरूरी है। ओके, उसके बाद जो है रिवीजन के 16 सेशंस हो गए, प्लस अमेंडमेंट्स के आपको अलग से सेशंस करने पड़ेंगे। इस तरह से बेटा मैं आपको कह दूं कि अप टू डेटेड मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो अमेंडमेंट्स है। जैसे मैंने कहा ओके 4 लेक्चर्स जो हो गए जिसमें सभी अमेंडमेंट्स कवर की जाएगी और आपको कंप्लीट अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। 16 सेशंस जो नवंबर के लिए रिकॉर्ड हुए थे, प्लस उसके साथ साथ अमेंडमेंट्स, ये सब कुछ आपको अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नाउ आपको जो बूस्टर रिवीजन का मटेरियल मिलेगा उसमें हर चैप्टर के पीछे अमेंडमेंट्स मैंने इनकॉर्पोरेट करके दी है। तो वो हर चैप्टर के पीछे की जो अमेंडमेंट्स है, चैप्टर वाइज डिस्कशन का अमेंडमेंट के सेशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से डरने की कोई बात नहीं बेटा, आई एश्योर यू आपको पूरा अपडेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बस सेशन बेस लिया गया नवंबर का ही ओके रिवीजन के सेशंस का, क्योंकि ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होने की वजह से नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स में मैंने ओके फिर से अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की। ओके, बेस नवंबर का ही लेके उसके साथ अमेंडमेंट्स, इसीलिए बेटा ये रिवीजन कम अमेंडमेंट बैच है। आई रिपीट, ये रिवीजन कम अमेंडमेंट बैच है। आई एश्योर यू आपको पूरा अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा ना। यहाँ बेटा तो ये 16 सेशन प्लस अमेंडमेंट्स। ओके, अब इस नोट्स का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? नोट्स का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपको ओके जो नोट्स मिली है यहाँ पे जीएसटी और कस्टम्स की, जीएसटी कस्टम्स की और एफटीपी की, तो हर चैप्टर के जीएसटी के हर चैप्टर के एंड में ओके अमेंडमेंट्स आर गिवन, अमेंडमेंट्स are given at the end of each chapter, ओके इसमें भी बहुत अच्छे से आपको अरेंज करके दिया है कि नवंबर तक की क्या अमेंडमेंट्स थी, उसके बाद के क्या अमेंडमेंट्स आपको है। तो ये जो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने नवंबर में अटेम्प्ट नहीं दिया होगा तो उनको दोनों अमेंडमेंट्स चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आती है तो उनको दोनों अमेंडमेंट्स चाहिए। तो इस तरह से कि भाई 30 अप्रैल तक की क्या अमेंडमेंट्स थी और 30 अप्रैल से 31 अक्टूबर के क्या अमेंडमेंट्स थी, ओके ये आपको उसमें प्रोवाइड किया गया। सेम फॉर कस्टम बेटा, सेम फॉर कस्टम। अबाउट एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मैं आपको ये कहूँगा कि एफटीपी पे डिस्कशन को मुश्किल से रिवीजन में हाफ आवर का है, तो मैं उससे ज़्यादा आपको कहूँगा कि मेरे रेगुलर सेशन जो है 2 सेशंस हो गए बेटा, रेगुलर सेशंस जो यूट्यूब पे है। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं होगा तो आप मेरे पेज पे जा सकते हो www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे, आपको रेगुलर सेशंस है ओके बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किए बेटा। ओके 1.5 की स्पीड से सुन लेना ओके, और रेगुलर सेशंस करके जाओ तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके साथ उसकी नोट्स भी वहाँ मैंने अटैच की है। आई रिपीट, एफटीपी की जो नोट्स है वो भी अटैच की है, तो आपके पास अगर मेरी रेगुलर नोट्स नहीं होगी तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप रिवीजन लेक्चर्स ना सुनते हुए पहले एफटीपी के लिए आप रेगुलर सेशंस सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा। और 5 मार्क्स, रियली कहता हूँ 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से ओके सभी बूस्टर रिवीजन को मैंने रिकॉर्ड किया है। नाउ उसके बाद में आपको मिलने वाला मटेरियल, आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा ओके जैसे मैं आपको बता दूं बेटा, आपको रिवीजन मटेरियल जो टोटल अगर देखा जाए तो 140 पेजेस प्लस अमेंडमेंट्स इस तरह से होगा। तो हाँ ओके बेटा 140 पेजेस में आपका कंप्लीट हो जाता है, प्लस अमेंडमेंट्स जो एक हर चैप्टर के पीछे एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स ऐड किया गया है, तो इसमें पूरा आपका जीएसटी हो जाएगा। फिर बेटा होता है क्वेश्चनर्स, फिर होता है चार्ट्स ओके। तो बेटा जीएसटी के आपको 2 मॉड्यूल मिलेंगे,
रेगुलर रिवीजन मटेरियल में, जिसे हम कहते हैं बूस्टर, जीएसटी बूस्टर। क्वेश्चनर्स के भी आपको 2 मॉड्यूल मिलेंगे और जीएसटी के टोटल 3 चार्ट्स मिलेंगे। ओके, आपको 3 चार्ट्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद में बेटा कस्टम्स एंड एफटीपी, इसका आपको रिवीजन मटेरियल 1 मॉड्यूल मिलेगा। क्वेश्चन यार बेटा, ओके, एक क्वेश्चन है और चार्ट आपको 1 चार्ट मिलेगा। ऐसे आपके किट में टोटल रिवीजन मटेरियल 3 ओके बुक्स होनी चाहिए, क्वेश्चनर्स 3 होने चाहिए एंड पूरा अपडेटेड क्वेश्चनर मिलेगा बेटा। ओके, कंप्लीट अपडेटेड क्वेश्चनर्स और आपके चार्ट जो है ओके 4 चार्ट्स आपके होने चाहिए। ओके, तो मैं आपको कहूँगा कि अभी जो मैं 19 के लिए अपडेटेड क्वेश्चनर्स बनाया गया वो क्वेश्चनर्स आपको मिलेंगे, चार्ट्स आपको मिलेंगे और रिवीजन मटेरियल की बूस्टर की। आपको एक बात कहूँ, आपने जो ये प्रोडक्ट खरीदा होगा, जो भी आपकी प्राइस होगी अराउंड 4000 5000 के आसपास, ओके, तो इसमें बेटा ये मटेरियली अगर आप इंडिविजुअल मटेरियल परचेस करो तो अराउंड ये मटेरियली 2500 का जाता है। ओके, तो वीडियो तो बेटा मेरे तरफ से एडिशनल सर्विसेज है, आपको इस तरह से समझना। प्लस तो यहाँ पे यहाँ मेरे जो वीडियो सेशंस आएंगे, वीडियो सेशंस यहाँ अराउंड 16 प्लस अमेंडमेंट्स के 4 इस तरह से रिवीजन मटेरियल पे आएंगे। क्वेश्चनर्स के सेशंस अलग होंगे, जो आपको अगर सुन वैसे तो रीड करने से आ जाएगा, पर अगर आपको अलग से सुनना है मेरे क्वेश्चनर सेशंस तो ओके 5 to 6 सेशंस क्वेश्चनर्स के होंगे। ओके, उसमें से 3 सेशंस अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं और खास बात यानी आपको चार्ट रिवीजन भी प्रोवाइड की जाएगी ओके एट द एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जिसके 3 सेशंस चार्ट रिवीजन्स के होंगे। तो सुनिएगा बेटा, 3 सेशन चार्ट रिवीजन के होंगे। तो बेटा इतना मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, रिवीजन मटेरियल, क्वेश्चनर्स और चार्ट्स। ओके, तो ये सभी आपको YouTube पे मिल जाएंगे, स्पेशली क्वेश्चनर्स और चार्ट ये नहीं मिलेगा बेटा, पर क्वेश्चनर और चार्ट्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे। और स्टे ट्यून विद ओके www.vsmartacademy.com/विशाल सर। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ओके, ये था रिगार्डिंग टू बूस्टर रिवीजन। तो यहाँ बूस्टर रिवीजन में जो नवंबर की जो सेशंस रिकॉर्ड किए गए हैं उसको ही आगे बढ़ाते हुए उसमें अमेंडमेंट्स के सेशन स्पेशली ऐड करते हुए आपको कंप्लीट अप टू डेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आई रिपीट, कंप्लीट अप टू डेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, डोंट बॉदर बेटा, ट्रस्ट मी, बस इतना मटेरियल पढ़ लो। एक बार अगर आपने पढ़ा है तो इतना मटेरियल पढ़ लो, ये सेशन देख लो, दैट्स इनफ। और इस बार हमें हमारी एग्जाम क्रैक करनी है, सीए बन के बताना है। ओके, सो दोस्तों ये था डिटेल अबाउट बूस्टर। इसके बाद में भी आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा और यहाँ पे हाँ एक बात मैं कह दूं कि ये जो अमेंडमेंट्स है ओके स्पेशली जीएसटी की अमेंडमेंट्स, कस्टम्स की अमेंडमेंट्स मैं आपको सेशंस आपकी पीडी में ही दे रहा हूँ। ओके, मोस्टली जो अमेंडमेंट्स हुई है, लेकिन जीएसटी की जो अमेंडमेंट्स है, थोड़ा एक बात और करना चाहूँगा आपसे। ओके, थोड़ा ये भी डिटेल आपको दे दूँ जाते जाते कि जीएसटी की अमेंडमेंट्स मैं आरटीपी का वेट कर रहा हूँ बेटा, आरटीपी आने दो और आरटीपी आने के बाद मैं आपको कंप्लीट अप टू डेटेड अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस है जो नोटिफिकेशंस प्रोसीजर ओरिएंटेड है और वो नोटिफिकेशन जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है तो ओके वो यहाँ पे कितने आपको अप्लाई होगे और क्या होगे इसके बारे में आरटीपी से क्लैरिटी आ जाएगी, इंस्टीट्यूट की स्टैट्यूटरी अपडेट्स भी आ जाएगी। ओके, तो उसके बेस पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर आप अपनी पढ़ाई ना रोके, आप कंटिन्यूअस पढ़ते जाइए। जो मेजर अमेंडमेंट्स है उसके पैच मैंने डाले हैं। ओके, तो वो आप देख सकते हो, उसमें कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, थोड़ा मैं आपको बता दूं चैप्टर वाइज। ओके, जाने के पहले देखो बेटा, जैसे मैं यहाँ ये कर दूं कि जीएसटी में थोड़ा एक रफली आइडिया देता हूं कि क्या अमेंडमेंट्स है और मैं किस तरह से कवर करने वाला हूं। जीएसटी में सेक्शन 71A सेक्शन 71A ऐड किया गया है। ओके, ये अबाउट शेड्यूल 2 से रिलेटेड
ओके, शेड्यूल 2 से रिलेटेड ये अमेंडमेंट में पूरा डिस्कशन मैं करूँगा। ओके, द अथॉरिटी ऑफ शेड्यूल 2 जीएसटी में इसके बारे में ऐड किया है। ये एक अमेंडमेंट है जो मैं आपके अमेंडमेंट में कवर करूँगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, हाँ, कुछ एग्जम्पशंस है, कुछ एग्जम्पशंस जो ओके जैसे आपको होगा तो होटल वाला, होटल पहले डिक्लेयर टैरिफ था, अब एक्चुअल वैल्यू पे आ गया है। तो होटल का जो अमेंडमेंट आया है कि एक्चुअल वैल्यू 1000 पे आ गया है रेदर देन डिक्लेयर टैरिफ। तो इस तरह से छोटे छोटे एग्जम्पशंस के ओके चेंजेस में अमेंडमेंट्स में आपके कवर करूंगा। ओके, आप सेशन सुन लीजिएगा बेटा, क्योंकि अगर आपको वो बेस पता है तो अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सेशंस आप सुन लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो एग्जम्पशंस है, कुछ एग्जम्पशंस ऐड हुए हैं, कुछ एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस में माइनर चेंज हुए हैं। ओके, तो वो एग्जम्पशंस के चेंजेस में आपके अमेंडमेंट्स में कवर कर लूँगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, ओके यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईजीएसटी रूल्स तो नवंबर को भी अप्लीकेबल थे। ओके, और आईजीएसटी रूल्स आपको भी अप्लीकेबल है। तो आईजीएसटी रूल्स जो है ओके वो भी मैं यहाँ पे अलग से कवर कर रहा हूँ। उसके बाद में हाँ, मैं आपको कह चुका हूँ कि रिटर्न और मैचिंग प्रिंसिपल्स इवन तो मैंने बूस्टर में लिया है, ओके, पर मैंने सेफर साइड लिया है डिस्कशन बूस्टर में, लेकिन ओके रिटर्न और मैचिंग प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं है। इसलिए बूस्टर में अगर मैंने लिया भी होगा तो आप उसको सुन लेना जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, लेकिन मैचिंग एंड रिटर्न प्रिंसिपल्स जो है सिर्फ जीएसटी वन ही आपको अप्लीकेबल है। तो रिटर्न एंड मैचिंग एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो रिटर्न और मैचिंग प्रिंसिपल्स है बेटा, तो ये नॉट अप्लीकेबल टू योर सिलेबस, नॉट अप्लीकेबल टू योर सिलेबस। ये नवंबर को भी अप्लीकेबल नहीं था और आपको भी अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टीडीएस एंड टीसीएस, उसका डिस्कशन मैंने अलग से लिया है और वो पैच अटैच करके दिया है। ओके, मतलब एग्जम्पशंस ये मैं अलग से लेने वाला हूँ, मतलब ये अमेंडमेंट्स में कवर होगा। तो एग्जम्पशन ये अमेंडमेंट में कवर हो जाएगा, जितने भी एग्जम्पशंस नए आए हैं या इम्पोर्टेंट ये भी आपकी अमेंडमेंट्स में कवर हो जाएगा, अमेंडमेंट्स में कवर हो जाएगा। ओके, आईजीएसटी रूल्स का मैंने साथ में ही बूस्टर रिवीजन के साथ ही ओके लेक्चर प्रोवाइडेड, आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। लेक्चर प्रोवाइडेड आईजीएसटी रूल जो आपको नवंबर अटेम्प्ट को अप्लीकेबल था। टीडीएस टीसीएस का भी लेक्चर मैंने आपको बूस्टर में जो अमेंडेड अपडेटेड है पैच करके प्रोवाइड कर दिया है, लेक्चर प्रोवाइडेड इन बूस्टर। और उसके बाद में जहां तक हम बात करें बेटा कस्टम्स की, ओके हाँ, कस्टम्स की अगर बात करें तो कस्टम में एक एसीडी 37 और 39 में एक नया कंसेप्ट आया है, एक एग्जिस्टिंग कंसेप्ट में चेंज नहीं हुआ है। एसीडी 37 और 39 में एक नया कंसेप्ट आया है, तो वो भी मैंने आपको बूस्टर रिवीजन में पैच ऐड करके प्रोवाइड कर दिया है। ओके, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से देख लेना। ओके, तो उसके लेक्चर्स जो है कस्टम्स के अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स मैंने आपके पीडी में दिए हैं, तो पीडी में वो अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज मैंने दिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा एडवांस रूलिंग इन कस्टम्स, तो ये लेक्चर इज प्रोवाइडेड। सेकंड बेटा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसका भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ओके। और एडवांस रूलिंग जो है, तो एडवांस रूलिंग जो है ये मैं आपका ओके अमेंडमेंट में कवर कर लूँगा। एडवांस रूलिंग इन कस्टम्स अमेंडमेंट्स में आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्योंकि एडवांस रूलिंग कम्प्लीटली चेंज हुआ है तो ये मैं आपका अमेंडमेंट में कवर कर लूँगा। तो इस तरह से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बेटा, कंप्लीट अप टू डेटेड मटेरियल है, डोंट बॉदर, आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है अप टू डेटेड है। पर अमेंडमेंट्स के लेक्चर मेरे आरटीपी आने के बाद आएंगे, तब तक आप ये जो मेजर चीज़ें हैं मैंने
आपको अलग से प्रोवाइड कर दी है, आप इतना पढ़ना चालू कर दीजिए और आरटीपी आने के बाद विथ आरटीपी डिस्कशन आपको मैं कंप्लीट ओके अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहाँ पे किस तरह से और कौन कौन से टॉपिक्स पे यहाँ आपको लेक्चर दे दिए गए हैं बूस्टर रिवीजन के साथ और कौन से टॉपिक्स पे आगे अमेंडमेंट्स पे आने वाला है। तो अमेंडमेंट्स में नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस ये भी मैं कवर करूँगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और स्टे ट्यून विथ www.vsmartacademy.com/vishal sir। थैंक यू।